session on mentoring and counseling. So, good evening, everyone. Today we'll be discussing a very, very interesting topic. समथिंग जो हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज तक हमने मेंटरिंग और काउंसलिंग पे चर्चा नहीं की है या हम मेंटरिंग और काउंसलिंग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं फॉलो करते, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। पर हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी to give something to you in return for the 1.5 years that we are going to be interacting with to हर एक टीचर के कुछ अपने रूल्स होते हैं क्लास के, मेरे भी हैं। बिकॉज हम लोग ऑनलाइन हैं, मैं जानती हूँ सब लोग बिजी होंगे। ओवर अ कप ऑफ टी कॉफी वी कैन हैव दिस चिट चैट। तो जब भी अगर आपको लगता है दैट माय वॉइस इज नॉट क्लियर या मेरी स्पीड ज्यादा हो more experienced in age, maybe in experience also, and when it comes to potential also. ऐसा हो सकता है क्या कि एक मेंटरशिप मतलब एक पार्टनरशिप है, एक मेंटर और एक मेंटी के बीच में की ये पार्टनरशिप है जहां पे एक्सपीरियंस और पोटेंशियल एक साथ आते हैं। तो क्या ये हमेशा जरूरी होता है कि एक मेंटर ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रहेगा, उसी के पास ज्यादा पोटेंशियल रहेगा? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मेंटी भी एक्सपीरियंस्ड हो, उसके पास भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो? बिल्कुल हो सकता है मैम। बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा कई बार होता है। जो कि हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बात कर रहे हैं, हमारी क्लास में कई बार हमसे उम्र में ज्यादा, एक्सपीरियंस में ज्यादा और पोटेंशियल में भी उनके पास, वी कैन से देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ पोटेंशियल in the students that are there in the classes. I still remember I started teaching quite early. मतलब मैंने एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी किया था इन 2005, 2007 में मैंने एमबीए किया, बट immediately after my psychology I had started teaching. So during that time I had got a contractual offer with MSW, and during my contract teaching developmental psychology to the postgraduate students there, मेरी क्लास में काफी से nuns थे, sisters जिसको हम लोग बोलते हैं. They were nuns, they were social workers who were much much more experienced than me, who had seen life better than me, who knew more and more things, and still they were open to learning.
Why I'm talking to you about this unique blend is because whenever we are going to talk about a mentor mentee relationship, it is a little bit different than what a teacher student relationship is. When I talk about counseling, I'll be talking about a counselor and a client relationship, which will be again a little bit different from a mentor and mentee. तो आज हम लोग तीन चीजों के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं: अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, a mentor mentee relationship, and a counselor client relationship. With this comes my next question: is my speed okay and is my language okay? Yes, ma'am. थैंक यू सो मच. सो बिकॉज हम 1.5 घंटा बात करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए that I simply keep on talking, you keep on listening, and there is nothing to take away from this particular session. When you all have registered, taken out time to enroll yourself and learn something, let me tell you, by the end of this 1.5 hour, I'm sure that you will all have a key takeaway, which is establishing better mentoring schemes in your institute. We'll try to also establish a counseling center if possible. You at least will go away with an idea that, okay, it might be possible for me to start a career counseling center at my educational institute so as to help as many students as I can possible, because we are all in the field of education wherein accreditation is a very important thing. तो NAC है, चाहे NIRF है, चाहे NBA है, किसी भी प्रकार के एक्रेडिटेशन और असेसमेंट में मेंटरिंग का कैसे इम्पैक्ट रहेगा, उस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे. एंड आई ऑल्सो टॉक टू यू अबाउट, गिव यू आइडियाज टू कैसा आप लोग आपका भी कहीं ना कहीं पे एक रैंकिंग बढ़ा, लाइफ इंस्टीट्यूशन ग्रो थ्रू दीज मेंटरिंग techniques that we are going to talk about. So moving on, let me talk to you about that. When I say the word mentor, okay, I see it as someone who will always identify more talent and ability within you than you see in yourself, and helps bring it out of you. So it will be someone who will know that yes, तुम कर सकते हो, करके तो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलके करके देखते हैं. So we all as teachers have the ability to encourage, motivate our students. But when I step into the role of a mentor, so it becomes my duty, my responsibility, I am accountable for that mentee who is now under my wing for almost a period of 4 years. I believe सबके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यही सिस्टम रहता है कि एक बार कोई अगर मेंटर बनता है तो वो 4 साल के लिए मेंटर रहता है. एम आई राइट? अब तक 3 साल था, अब 4 साल रहेगा, जो कि एनईपी 2020 आ गया है. सो 4 इयर्स का हमारा ग्रेजुएशन हो गया है. सो 4 इयर्स के लिए रहेगा हम एक मेंटर फॉर अ पर्टिकुलर मेंटी. इज दैट ट्रू? या आप लोग बदलते हैं मेंटर्स? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. आई एम ऑडिबल. ऑल राइट. बस ऐसा बीच में भी अगर किसी ने मुझे बता दिया that I am audible, so that I'll know that you do not want to answer my question, hence all of you are mum. Otherwise I'll be in a situation कि भाई आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही. All right. So I'll assume that in every institution the ratio of the mentor mentee is 1:15 to 1:30. And once a mentor is given to a particular mentee, they stay till the mentee graduates from the institute. So I'm going to presume that with you.
So let me talk to you about the journey of mentorship. सो इट्स नॉट एट ऑल अ न्यू थिंग, आज के जमाने में ही ये फैड आया है, ऐसी बात नहीं है. अगर हम लोग हमारे इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो वैदिक पीरियड से गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ चलती आ रही है. चाहे वो गुरु द्रोण हो, उनका रिलेशनशिप विद उनका खुद का बेटा अश्वत्थामा से लेके, अर्जुन से लेके, एकलव्य से लेके कर्ण तक, Parshuram ka relationship with Karn, or for that matter, when you talk about Sri Krishna's gurus, we all believe that yes, गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारे यहाँ चलती आ रही है. ये तो हमने बहुत एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बात की, हम किंग अशोक और चाणक्य की भी बात कर लेंगे, तब भी हम देख पाएंगे that everybody is going to require that someone in life who is going to steer away the obstacles, जो उन्हें ये clearly बता पाएगा कि भाई this is the way that you have the potential, you have the necessary expertise, let me help you and take you to the right path. बट जो वर्ड मेंटर है, इंग्लिश वर्ड मेंटर, ये होमर की एपिक पोएम है ओडिसी, वहां से आया है. सो वहां के जो राजा थे, व्हेन ही वांटेड टू गो ऑन अ वॉर, अपना बेटा टेलीमाकस को उनको किसी की कस्टडी में रख के जाना था, और उन्होंने अपना जो मेंटर इन द सेंस, ही टोल्ड हिम दैट तुम मेरे बेटे को सब पढ़ाओगे, राजपाट कैसे करना है, वॉरफेयर कैसे करनी है, यू बिकम दैट पर्सन इन माय सन्स लाइफ who will be able to tell him the right and wrong, the good and bad, the do's and don'ts, and eventually make my son capable of becoming a king. तब ये वर्ड मेंटर यू नो ओरिजिनेट हुआ है. एंड देन स्लोली मिडिवल गिल्ड्स का जब आया तो अप्रेंटिस सिस्टम आया, और आज की डेट में तो फॉर्मलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से चलते आ रहे हैं. Right? I hope I am making sense and my voice is not wavering in between, because sometimes I can see that the connection is fluctuating, and therefore I'm asking you this question. Am I clearly audible to you all? नहीं मैम, बीच में आपकी आवाज कट हो जा रही है. कट हो जा रही है ना? हाँ, जी, बस जी. तो just I'll move on to the another location so that I'm clearly audible to you all. Just give me a minute. But I believe that you could hear me talking to you, coming from generations together, and how every student, every individual who has a lot of potential will require someone in life to guide them, to help them steer clear, as I told you, the obstacles that they are going to face in life. I hope my voice is now a little bit clearer, or is there still a fluctuation? No, ma'am. No, ma'am. It's working now. Can Now it's working. All right, great, fantastic. So Okay. let us move on to another slide. So for me, when I talk to you about the Guru Shishya Parampara, I talk to you about, who is a mentor. You need that someone in life who is going to help you, in whatever problems that you are going to face. So for me, the quintessential mentor becomes this individual, okay, Lord Krishna. When I talk to you about this relationship, to you about someone who is going to, always be there for you with whatever dilemmas that you face in life. Now, if you look at this particular picture, we all know that it is from Mahabharat. हम सब ये जानते हैं कि जब अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रखा था कि भाई मैं मेरे ही फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे लड़ पाऊंगा, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, हाउ एम आई गोइंग टू go ahead with them. But before I take on to this question, I'm sure we'll simply एक छोटा सा recap ले लेंगे to the story wherein Krishna became the charioteer for Arjun. तो जब उन्होंने पूछा था कि जब दुर्योधन जाते हैं, अर्जुन जाता है श्री कृष्ण के पास और बोलते हैं कि
यू नो, whom would you like to choose? एक तरफ है मेरी एक अक्षयणी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था. I'm not going to pick up weapons in this Mahabharat, right? And Sri Krishna says, Arjun says that eventually I'm going to choose you. और वो उसे कहते हैं कि यू नो, आई एम श्योर सबने जया किशोरी जी का जब हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, बहुत अच्छा सा एक रील आता है जिसमें जया किशोरी जी बहुत अच्छे से बताती हैं दैट यू नो श्री कृष्ण वेरी मॉकिंगली आस्क्स अर्जुन दैट यू नो दुर्योधन के पास सब कुछ चला गया है, राइट, और तेरे पास तो छाछ रह गई है, कि दुर्योधन ले गया है माखन, तेरे पास बच गई है छाछ. एंड अर्जुन सेज दैट माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, right? The point I'm trying to make here is that we need someone in life who is not going to give us ready made solutions, but someone who will tell us that, okay, this is the problem that you can identify, and now let us work towards that particular solution. And when we have this kind of mutual trust, that ultimate belief that whatever my mentor is going to tell me is going to be the best thing for me in my life. Probably आज मेरे लिए वो क्या कहते हैं, एक माइट साउंड व्हेरी ट्रिवियल फॉर मी. बाकी लोग यू नो आपल्याला मूर्खत काढतील आहेत की यू नो किसी की भी बात क्या सुन रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक्सेट्रा. बट when I talk about the quintessential mentor, when I talk about the mentor mentee relationship, the most important thing that we all teachers need to develop to become a good mentor is having a wonderful bond between the student and a teacher, that is a mentor and a mentee. That is to have unshakable faith, to have trust on each other, unconditional support without any expectations, and that warmth that you feel from one another. When you have that kind of unconditional support, that yes, whatever problems that I have, I am going to place that in front of my mentor, and I am not going to get a ready made solution, but yes, I am going to get variety of options. I am going to get some sort of ray of hope as to how to solve these problems. So mentor is in a way someone who is going to help us, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हैव योर बैक, आई हैव योर बैक. आई हैव योर बैक मतलब तू आगे चल, मैं हूं, आई एम देयर with you at every step of life. And believe me, with the conviction with which I say these words come from my own personal experience. I have a mentor who is with me at every step in my life since the mentor mentee relationship. मतलब मैं कहती हूँ ना कि mentor mentee relationship generally 4 साल का रहता है जब तक बच्चा पास आउट नहीं होता है. So when in MBA, I was allotted a mentor back there in 2005 में मैंने एडमिशन लिया, 2007 I passed out. So till that, this date, my mentor is with me and has my back. I know this for sure. So whenever a problem arises, I know I have one person to believe in. And if that kind of relationship we try to develop with our mentees, imagine what a wonderful feeling that would be for all of us. What a wonderful feeling the mentee will have, that they have someone in life to rely on, to lay back on, to you know that in मुश्किल घड़ियों में कोई तो ऐसा रहेगा that they will be there to not only support us but give us that ray of hope. Moving on, why is it essential to have a mentor in life, or rather why to have a mentoring process in today's educational setting, is because of a variety of problems faced by today's youth. तो क्या आज का यूथ और 10 साल पहले के यूथ में कोई फर्क था? तो जी हाँ, बहुत बड़ा फर्क था. पहले भी एकेडमिक प्रेशर था, आज भी एकेडमिक प्रेशर है, बट द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जो आजकल के यूथ में आ रही है वो बहुत ज्यादा है. सब कोई इंस्टाग्रामेबल लाइफ देखने के सपने देखते हैं. दे वांट एवरीथिंग यू नो वेरी इंस्टाग्राम वर्दी. कहीं पे भी जाएंगे you will see there is a lack of life skills among people. And when I talk about lack of life skills, can someone talk to me about what exactly do we mean by life skills?
Anyone who can just talk to me about this? All right, I take that you don't want to talk about it. Is that right? Can I get a yes at least on this? So that I know that I'm audible. Guys, you need to tell me a yes and no so that I can proceed further. Yes, ma'am. जी मैम. Yeah, thank you so much. So, when I talk about academic pressure and uncertainty or identity exploration and decision making, जो कि हम NEP के विषय में चर्चा कर रहे हैं ये पूरे mentoring process में, every year they have an option to leave the program, right? First year में अगर बच्चा चाहता है वो program छोड़ सकता है, second year में कर सकता है, third year में degree लेके जा सकता है. So when they have a lot of options, हम लोग जब बुफे में जाते हैं बहुत सारे पदार्थ हमारे सामने रहते हैं, we get confused, right? पहले क्या खाए, चाट काउंटर पे जाए कि चाइनीज पे जाए कि कॉन्टिनेंटल पे जाए कि डायरेक्ट मेन कोर्स पे जाए, और शुड आई स्टार्ट विद डिजर्ट्स, और शुड आई टेक एवरीथिंग एल्स लिटिल लिटिल लिटिल, आई taste everything and then maybe decide as to what is to be done. But ये सब process में probably हमारा पेट ही भर जाता है. The point I'm trying to make is that today's youth has a lot of options at their disposal. ठीक है बेटा, ये नहीं करना है तो छोड़ दो, किसी और प्रोग्राम में आप एडमिशन ले लो. इफ यू डोंट वांट, 1-2 साल बाद तुम्हें अगर लगता है कि ओके दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको तो वैसे भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलने वाला है, आप किसी और चीज में एनरोल कर सकते हैं. एंड देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेंटर in helping the students taking the right decisions, in helping them identifying their key strengths and weaknesses, helping them understand what are their goals and aspirations, helping them understand that what will be good for them if they continue with this particular program that they have been admitted to, etc., etc. When I talk to you about strengths and weaknesses, let me tell you that I urge all of you to prepare an Excel sheet for all your mentees. अगर मान लीजिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि 1:30 का रेशो है, मतलब एक टीचर के पास 30 मेंटीज आएंगे. अब अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग बीए प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ओके, और अज्यूम कर लेते हैं कि मैं टीचर हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की. अब मेरे पास 30 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है एज अ मेंटी. अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग एन एक्सेल शीट, जिसमें कि शीट नंबर 1 को मैंने नाम दे दिया है द बेसिक इंफॉर्मेशन, या फिर हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे. देयर नेम, देयर एज, जेंडर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मदर एंड फादर दोनों के नाम, उनके ऑक्यूपेशन, इफ पॉसिबल फैमिली इनकम, उनका कास्ट, रिलीजन. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी. उसके साथ साथ आप उनके ईमेल एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये और एड्रेस. और बच्चा अगर ट्रैवल करता है तो विच ट्रैवल माने फ्रॉम रूरल टू अर्बन, कामटी, काटोल, गढ़चिरौली कहीं का बच्चा है एंड ही स्टेइंग एट अ हॉस्टल, और फॉर दैट मैटर कई बच्चे अप डाउन भी करते हैं, राइट? तो वो किस इससे अप डाउन करते हैं वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है. वंस दिस इज डन, शीट नंबर 2 में आप लोग अगेन बच्चे का नाम और उसके आगे उनका SWOT एनालिसिस करेंगे. आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट SWOT एनालिसिस इज, Yes, ma'am. right? And you are doing it for your students as well, Yes, ma'am. राइट? सो जब हम ये SWOT एनालिसिस करते हैं बस उसको एक एक्सेल फॉर्मेट में ले लेना है. अब जैसा कि मैंने कहा मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मेरे 30 मेंटीज का मैंने नोटिंग डाउन कर लिया है. उन 30 मेंटीज में से मैंने 15 मेंटीज का देख लिया है कि 15 बच्चों को वीकनेस में बच्चों ने लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं है, उनको डर लगता है इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में. ऑलराइट, ये क्या हो गया है, अब मुझे पता चल गया है दिस इज द एरिया दैट आई नीड टू वर्क ऑन. ओके,
ये स्वॉट एनालिसिस जब हम करते हैं बच्चों का, उसी के साथ साथ आपको उनके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उन्होंने बीए में एडमिशन क्यों लिया हुआ है, ये भी आपको उनसे पूछ लेना है। जैसे ही आप लोग यू एंटर इनटू द इंस्टीट्यूट, मतलब जैसे ही इंस्टीट्यूट शुरू हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और क्लासेस शुरू हो जाते हैं, विद इन फर्स्ट वीक आप लोग ये एक्टिविटीज बच्चों से करा लीजिए। Now comes my next question. How many times in a month do you have mentoring sessions? Anyone who is ready to answer? Anyone? महीने में एक All दो right. Yeah, anyone? महीने में तो एक दो बार मिल लेंगे। महीने में एक दो बार. All right. So I'll now give you some tips of how to run actually this mentoring scheme. So I will request all of you to prepare a mentoring plan. Lesson plans बनाते हैं ना सब लोग, उसी प्रकार से हमें एक mentoring plan बनाना है। और वो मेंटरिंग प्लान किस हिसाब से होगा, हमें उस मेंटरिंग प्लान में हर हफ्ते के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को बना लेना है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते होंगे जिसमें आप इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने मेंटीज के लिए, एग्जाम डेट्स कब है, एग्जाम फॉर्म कब भरना है, स्कॉलरशिप फॉर्म कब भरना है, छुट्टियां कब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम आई राइट? यस मैम। anyone else Yes, who ma'am. uses this WhatsApp group अदर चीजों के लिए, मतलब ये जो मैंने जितनी भी चीजें बताई, जो नोटिस बोर्ड से रिलेटेड चीजें होती हैं, इनके अलावा हम WhatsApp ग्रुप किन्हीं और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जो आपके 30 मेंटीज हैं, तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ही आपका डिस्कशन फोरम बना लें। ओके, सो एवरी वीक, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मुझे मेरे बीए प्रोग्राम के 15 बच्चों से पता चला है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अपॉर्चुनेटली बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर, फॉर द फर्स्ट वीक, ओके, आई एम गोइंग टू टेक वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज फॉर देम बेस्ड ऑन इम्प्रूविंग their English language proficiency. तो प्रोफॉप्स, englishclub.com, ग्रामरली, डिओलिंगो ऐसे एप्स और वेबसाइट्स की मदद से आई एम गोइंग टू हेल्प माय स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो उनके शॉर्ट टर्म गोल्स, एस्पिरेशंस के लिए मैं छोटे छोटे उनसे वीडियोस या रील्स बनवा सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे क्लोज सर्किट ग्रुप बना सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को ही बोलें कि कैसे वो उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हेलो माय नेम इज सो एंड सो, मेरे ये हॉबीज हैं। धीरे धीरे बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू ओपन अप टू देम, जिसको हम लोग आइस ब्रेकिंग सेशंस बोलते हैं, ये आप लोग शुरू कर सकते हैं। और हफ्ते में एक बार तो भी आपको आपके मेंटीज के साथ मिलना है। तभी हम लोग, जब ये अगर हमको, बिकॉज आई सेड दैट वी वांट टू रियली रियली डेवलप दिस प्रोग्राम, सो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू एंश्योर दैट कि हाँ, हमारे बच्चे हमसे कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड रहें। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी उनके बहुत रहते हैं, किसी को स्टेज फियर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, किसी की सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। इनके चलते हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम हमारे मेंटीज के साथ कनेक्टेड रहें, वो हम पे ट्रस्ट कर पाए। They should be in a position to open up to us and share their little problems with us. कि yes, I fear stage. I do not know how to do a public speaking. या फिर मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लगता है, इकोनॉमिक्स नहीं जमता है, या फिर मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैंने ये प्रोग्राम इसीलिए लिया क्योंकि कहीं और मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। इफ एट ऑल यू यू नो talk to your students, you will be in a position to understand their problems, और तभी आप उनके लिए solutions दे पाएंगे। देखिए, हमारे इस पूरे मेंटरिंग प्रोग्राम का एंड होने वाला है इनटू एम्प्लॉयबिलिटी।
हमारा बच्चा at the end of the day should be employable, be it arts, commerce, science, engineering, architecture, medicine, management, any field that the student is from. At the end of 4 years, the student should have a respectable job in his or her hand. जब मैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपसे नेक्स्ट सैटरडे बात करूंगी, तब इस विषय में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए मैं फिर से लेट मी कम बैक टू माय एक्सेल शीट एंड द व्हाट्सएप ग्रुप दैट आई एम आस्किंग यू टू यू नो, आप उसमें थोड़ी सी जान डालिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, खुद का एक वीडियो बनाइए आज की डेट में और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। talk to them about what life is all about. गौर गोपाल दास है, सिस्टर शिवानी है, या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आप फॉलो करते हैं, बियर बाइसेप्स है, किसी के भी वट एवर स्मॉल, अगेन मैं बोल रही हूँ, बड़े बड़े लंबे चौड़े आपने अगर वीडियोस डाल दिए 10-10 मिनट के, लेट मी अश्योर यू कोई नहीं देखने वाला है। रील्स डालिए, यूट्यूब शॉर्ट्स डालिए, बच्चे जरूर देखेंगे। आपको एकदम तुरंत में हार्ट, emojis, thumbs up and claps and what not you will get on those reels. Keep on sharing. आप चाहें तो एक एक्सेल शीट, तीसरा एक्सेल शीट बना लीजिएगा जिसमें कि यूट्यूब रादर यूट्यूब नहीं, ई रिसोर्सेस जो आप आपके बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक कॉलम में आप मोटिवेशनल वीडियोस डालिए, दूसरे कॉलम में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तीसरे कॉलम में कम्युनिकेशन स्किल्स, चौथे कॉलम में आप सब्जेक्ट रिलेटेड आप डाल सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा, आपके पास एक रिपोजिटरी बन जाएगी और आप ये हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे for your students. I hope I am making sense and my speed is okay. जी मैम। Yes, ma'am. Thank you so much for such a quick answer. So, when we are talking about so many problems faced by today's youth, तो इसके लिए तो हमें एज अ मेंटर जब हम स्टेप अप करते हैं तो क्या हमने पहले करना चाहिए? सो व्हाट टू डू बिफोर वी स्टेप अप एज मेंटर्स? तो टीचर की टोपी उतार के जब एक मेंटर की टोपी पहननी है, मतलब सब्जेक्ट टीचर के लिए 120, 100, 50 जितने भी बच्चे मेरे क्लास में, वो मेरे लिए समान है। The moment I step up as a mentor, I am accountable to my 30 students, 15 students, 10 students, जितने भी मेरे पास अलॉट किए गए हैं। और सबसे पहले मुझे खुद का SWOT एनालिसिस करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता करने हैं। व्हाट इज माय फॉर्टे, व्हाट इज समथिंग दैट आई एक्सेल इन, और कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। I believe every teacher should do a SWOT analysis every semester. हमारा सेमेस्टर पैटर्न पूरा चलता है, हर सेमेस्टर में हमने SWOT एनालिसिस करना चाहिए। क्या सीखा मैंने ये सेमेस्टर में? Did I join an FDP to enhance my knowledge and skills? Did I take a particular course? Did I launch a particular course as an instructor? What new things did I learn? जैसा कि मैंने कहा, it's a unique blend of partnership. स्टूडेंट्स भी हमसे कई बार कुछ चीजें सिखा जाते हैं, तो what is it that I have learned and what is it that I need to improve? I don't know how many of you take a feedback from your students, and when I say a feedback, I do not mean an oral feedback, a written feedback, और वो feedback भी नहीं जो आपका institute collect करता है। You as an individual subject teacher, do you create a Google form or a questionnaire wherein you collect data from the students about your own self? Anyone who has done that? Guys, you need to talk to me. Okay, ma'am. Okay. Not yet. Nobody has given it a try. So I'll urge you that आप एक बार तो भी कोशिश जरूर कीजिएगा to take that feedback from your students. Now, why I am telling you this is, we all have our weaknesses, right? You all have certain weaknesses in us. Maybe टीचर बहुत रूड है, या फिर ऐसा हो सकता है दैट टीचर के पास कभी टाइम नहीं रहता है। होता है ना कई बार ऐसा, दैट we get engrossed in a lot of administrative tasks, and
We do not have the time to talk to students. ऐसा नहीं होता है कि हमें बात नहीं करनी होती है, पर हम नहीं कर पाते हैं because we are engrossed in some other work. होता है ना, हमारे साथ कई बार होता है. So the students might feel that, you know, that he or she is not approachable, या फिर जब भी हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो कभी हमारी बात नहीं सुनते हैं. And if we get this kind of a feedback, we can always work. So what kind of things I can do? Maybe I can return calls. अगर कोई missed calls होते हैं तो before the day ends, before you retire, obviously before 8 o'clock or so, you can check your call list. You can make a call, drop a message to your mentees on the WhatsApp group, or DM them, and you can establish that kind of a rapport. Let me tell you, there has never ever been an instance कि मैंने मेरे mentor को call किया and I did not get a reply back from him. कितने भी busy रहेंगे, somewhere he'll find that time gap and drop a message that what was it about. He'll give a call back saying okay, tell me what did you want to talk to you. So ऐसा अगर हमने किया तो हमारा कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मैं आपको बताती हूँ, मुझे जब फीडबैक मिला था मेरे बच्चों से दैट आई एम पार्शियल, सो आई थॉट यार मैं तो कभी पार्शियलिटी नहीं करती हूँ, ऐसा बच्चों को क्यों लगा कि मैं पार्शियल हूँ. कहीं ना कहीं पे मेरे बिहेवियर से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे एक्शन से, या ड्यू टू सम रीजन और अनदर, if a few students are feeling that I am partial, I must look into the matter. And then when I started digging up things, started talking to people, started talking to students, who said that, ma'am, you are partial. And they told me, because I teach in a university which is, I have students from all across India, right from Tripura to there, down there in Visakhapatnam, to have students from Jaipur as well. So sometimes it does happen that I start talking in Marathi to the Marathi student and they feel left out. So I ensure now these days that whenever I talk to a group, I talk in Hindi. अगर 1-to-1 कोई बच्चा मराठी वाला मुझसे बात कर रहा है तो मैं मराठी में बात करती हूँ, but otherwise I ensure that I either talk in English or I talk in Hindi. So ऐसा जब हम लोग feedback लेते हैं तो we identify the areas of improvement. I believe somebody's mic has just switched on. If they could please turn it off. Yeah, thank you for that. So when I was talking to you about reflecting on areas of improvement, please आप जरूर before the end of the semester, एक मान लीजिए आपका लास्ट टीचिंग डे अगर 30 तारीख का है या 20 तारीख का है, तो फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट वीक में एक फॉर्म फ्लोट कर दीजिएगा एंड आस्क देम ऑन yes and no question की जगह रेटिंग वाला डालिए. Ask them about what did they like about a particular subject, 4 things that they liked and 4 things they did not like at all. Okay, what is that they want to, अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो क्या आप इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहेंगे उस पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड, ये भी आप पूछ सकते हैं. कीप द सर्वे वेरी शॉर्ट, नॉट मोर देन 5-6 क्वेश्चंस, बट इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या रहेंगे, आपको जरूर पता चल जाएगा. एंड विद दोज रिफ्लेक्शंस वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स. So when I talk to you about skills of a mentor, I am going to focus on skill number 4, 5, and 6. Because when I talk about skill number 1, 2, and 3, which is communication, empathy, and being approachable, I believe each and every one of us knows that for a teacher, for a mentor, for a counselor, the most important thing is communication and empathy. If we do not understand how to talk to students, or how to respond to variety of situations, be it our body language, the gestures, the eye contact, the posture that we are
talking to, it makes a lot of impact on the psyche of a particular student, right? So if I'm leaning against a wall, slouching my shoulders, simply looking here and there, when a mentee is talking to me, it's definitely going to give a message that you're least interested. We all know this. So I'm not going to focus on these three skills, but my focus is going to be on networking. And why networking? Because with NEP, you are going to require to help your student with a lot of field work, with a lot of internships, a lot of research projects that you need to do. And for this, you need to be very, very active on professional platforms like LinkedIn, wherein you can connect with people from other spheres of life, not only your own sector, which is education, but from other areas as well. NGOs हो गए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज हो गए, या फॉर दैट मैटर जहाँ पे भी रिसर्च से रिलेटेड काम होता है। आप देखेंगे आजकल यूजीसी, आईसीएसएसआर, इन सबके हैंडल्स लिंक्डइन पे आ गए हैं। All the big people are there on LinkedIn, and you can immediately understand what all changes, what all policy things are going on. And therefore, networking becomes very, very important. Ask your students also, every mentor, मैं फिर से रिपीट करूंगी, एवरी मेंटर शुड इंश्योर कि आपके मेंटीज का लिंक्डइन प्रोफाइल बने। क्यों बने? क्योंकि जब रेज्यूमे आजकल बनता है, उसमें वो लोग लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मांगते हैं। तो अगर नहीं होता है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू have one workshop या one session on how to be active on LinkedIn, or how to be an effective member of this LinkedIn community। ऐसा आप जरूर वर्कशॉप रखें। सेकेंड इज हैविंग अपडेटेड इंफॉर्मेशन। मैंने आपको ई रिसोर्सेज के बारे में बताया कि आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए ऑफ ई रिसोर्सेज रिलेटिंग टू इंग्लिश नॉलेज प्रोफिशिएंसी या कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। उसी के साथ साथ आपको एक और रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है विच इज रिलेटिंग टू करियर्स, करियर प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ कि बीए का अगर प्रोग्राम है उसके बाद बच्चा क्या क्या कर सकता है। सो कौन से एग्जामिनेशंस में अपियर हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उसका क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, पासिंग परसेंटेज कितना है, सिलेबस कितना है। अगर बच्चा चाहता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, तो कौन से फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, आईलेट्स है, जीआरई है, टोफेल है, ये सब एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप निकाल के रख सकते हैं। अगर बीबीए का प्रोग्राम चला रहे हैं, बच्चे को आगे चल के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो क्लैट, मैट, जैट, जी मैट, सैट, ये सब एग्जाम्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल के रख सकते हैं। चाहे तो अपने इंस्टीट्यूट में इन एग्जाम्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सेल बना के उसके क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं। फी स्ट्रक्चर कितना है, फॉल विंटर में प्रोग्राम शुरू होता है क्या, एवरीथिंग दिस इंफॉर्मेशन अ मेंटर शुड हैव। You should be having updated information about what kind of jobs are available in the market, and you can create a small survey with this regards also. And at the same time, a mentor should have basic knowledge of psychology, that is student psychology. अभी रिसेंटली NITTR चेन्नई ने स्वयं पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑन स्टूडेंट साइकोलॉजी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट और नॉट, and how many of you enrolled or not, but if at all anybody is interested, जब next time ये program float होगा, it was floated by Dr. B.M. Renuka Devi. I repeat, the program was floated by NITTR Chennai by B.M. Renuka Devi on the subject of student psychology. You will get to know a lot of things relating to how a student has variety of problems, and how we as mentors, as educators, can help them in resolving that issue. I hope I'm making sense. Would anybody like to add on to any skill that you feel is essential for a mentor, or would like to share your experiences regarding networking or being approachable,
or how your communication skills have helped you to become a better teacher or a mentor? Anyone? Can I have an yes and no at least? Yes, ma'am. Am I audible? yes ma'am, yes ma'am, you're audible. Yeah. पार्टिसिपेंट प्लीज भी रिस्पॉन्ड. Yeah, thank you. मैडम को कुछ I thought, समझेगा नहीं, आप Yes, लोग है ma'am. कि You नहीं are है. audible. Yes, ma'am. Yes. yeah, thank you so much. Is it that boring that you're not answering, or do I need to slow down a bit? Do I need to give more examples? You can simply let me know that if it gets more boring for you. Okay, so yeah. So why is it important to talk about mentoring for students? Why not teachers, right? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में नए नए टीचर्स आते हैं, CHBs आते हैं, एडहॉक टीचर्स आते हैं, और इन टीचर्स को भी कहीं ना कहीं पे मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है. क्यों मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी, कोई बता सकता है नए टीचर्स को? ओके, नो आंसर. सो आई विल टेल यू क्यों जरूरत पड़ सकती है. कोई अपने PhD के फर्स्ट स्टेज पे होगा कि भैया PhD एग्जाम पास की है, सिनॉप्सिस बना रहे हैं. कोई हो सकता है कि सर्वे स्टेज पे हो, कोई एनालिसिस पे हो, कोई सबमिशन स्टेज पे हो, या जिसकी सबमिशन हो भी गई है, डाउट्स हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो. We always are in a continuous process of learning, and therefore be it newly inducted teachers or senior teachers also, mentoring to teachers becomes a very very interesting thing. So mentoring in higher educational institutes is highly beneficial if used in the right manner. Now new teachers are going to every now and then, कहीं ना कहीं पे तो जरूरत पड़ने ही वाली है उनको हेल्प की. तो ऐसी सिचुएशन में आप नए टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं. मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी कि NAC में इसका कैसा फायदा किया जा सकता है. सो 2 से 3 कॉलेजेस मिलके एक MOU कर सकते हैं, जो कि क्राइटेरिया 3 में हमारे इसमें है ना, इनोवेशन एक्सटेंशन एंड कंसल्टेंसी वाला. उसमें आप MOU दिखा सकते हैं, फंक्शनल MOU. 3 कॉलेजेस मिलके अपने जितने भी CHB या न्यूली इंडक्टेड टीचर्स हैं, एडहॉक टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा वर्कशॉप, FDP या सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला सकते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, राइट. आप उनके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके साथ साथ आप चाहें तो उनका क्लासरूम मैनेजमेंट, और फॉर दैट मैटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रिलेटेड क्या चीजें हैं, पेडागोजिकल इनोवेशंस के आगे आ गए हैं, इन सब से रिलेटेड आप कर लीजिए. लेकिन उसके भी पहले आपको नीड एनालिसिस करना है. आप पहले ये पता कर लीजिए कि किस बारे में एग्जैक्टली डू दे वांट टू बी ट्रेन्ड ऑन. सो ऑब्जर्व देयर क्लासेस फॉर अ वीक. मैंने जैसे कहा, स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए. आस्क स्टूडेंट्स दैट कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे न्यूली इंडक्टेड टीचर्स को इश्यूज आ सकते हैं. कोई बोल सकता है पीछे तक आवाज नहीं आती है, या हमें एग्जाम्पल्स जैसे आप पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एक्सेट्रा. सो कीप ऑन ऑब्जर्विंग, गेट फीडबैक एंड सपोर्ट दोज टीचर्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस. अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ. I have divided them into 4 parts. देखिए, जब हमें मेंटरिंग के लिए एक्टिविटीज कराने हैं तो ये बहुत जरूरी बन जाता है that we have an academic calendar sort of a thing for these activities. Either आप सब लोग मिलके brainstorm कीजिए कि इकट्ठा बैठिए एक स्टाफ रूम में 1-2 दिन, और सब लोग अपने अपने आइडियाज जॉट डाउन कीजिए, और सेम लेवल के एक्टिविटीज सभी के लिए लीजिए. या फिर you as an individual teacher can have your set of activities for the students. So सबसे पहला साल जो होता है, because it is very crucial for the students, right? A lot of uncertainty, they are new, थोड़े डरे हुए, थोड़े सहमे हुए,
depending on a slow, advanced or average learner that they are, they may not know how to respond to situations. और ऐसे टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उनका अकेडमिक गाइडेंस उनको देना, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, पेपर कितने घंटे में सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को कितना टाइम लेना है, एग्जाम प्रिपरेशन में दोस काइंड ऑफ थिंग्स, स्टडी हैबिट्स डेवलप कराना। तो आपको आपके मेंटीज के लिए एकेडमिक काउंसलर का रोल प्ले करना है। देन पर्सनल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा उनके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, व्हाई डिड दे जॉइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, टॉकिंग टू देम अबाउट देयर स्वॉट एनालिसिस, एंड देन टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन सोशल इंटीग्रेशन, ये हमारा काम है दैट दे बिकम इन्वॉल्व्ड into the institution। तो अलग अलग क्लब्स में, अगर आपके क्लब में फोटोग्राफी क्लब है, साइंस क्लब है, या फॉर दैट मैटर डिबेट क्लब है, या कोई अलग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर है, involving them in writing press releases, taking photographs, कहीं रंगोली निकालना है, ये तो हम करते ही हैं। तो पहले सेमेस्टर से अगर हम लोग धीरे धीरे बच्चों को इंटीग्रेट करने लगेंगे, तो इट विल बी क्लियर एक्सप्लेनेशन। स्लोली इंडस्ट्री का ओवरव्यू, जो कि मैंने आपसे कहा था ना, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो आफ्टर सेकेंड मंथ आप आपके बच्चों के साथ, आपके मेंटीज जो हैं उनके साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी प्रोग्राम बच्चा कर रहा है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, उसके हिसाब से आप इंडस्ट्री का ओवरव्यू दीजिए, क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, रेज्यूमे बिल्डिंग कैसा करना है, क्योंकि ये आप अगर सोचेंगे यार ये तो प्लेसमेंट ऑफिसर का काम है या ट्रेनिंग से हेड का काम है, हम ये क्यों करें, तो नहीं चलेगा। We as mentors have to don that hat of a trainer also for them, right? And we have to ensure that unka resume is updated as per the demands of the industry. Unki LinkedIn profile ekdam achhi honi chahiye and they should have a presence on that particular platform. I hope I am making sense here. Yes, ma'am. Right? Let me move on. So जैसा बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है, अब धीरे धीरे उसको कोर्स सिलेक्शन, बिकॉज मूक्स आ गए हैं, वो अलग अलग कोर्सेस मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, तो वो दूसरा कोई कोर्स कर सकता है। कौन सा कोर्स उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके करियर के लिए अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। हमें हमारे स्टूडेंट्स को रिसर्च का नॉलेज देना है। सो रिसर्च मेथड्स उनकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटा छोटा सर्वे उनसे करवाइए आप। पहले तो क्वेश्चनायर डिजाइनिंग से लेके सर्वे कंडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, एकदम छोटा छोटा करवाइए, पर जरूर करवाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके स्टूडेंट्स के लिए। इंश्योरिंग, आज एआई का जमाना है, हमारे यहाँ के बच्चे एआई का एकदम खुलेआम यूज करते हैं, होना भी चाहिए कुछ हद तक, बट हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज एआई एंड हाउ टू यूज एआई एथिकली इज व्हाट वी टीचर्स शुड टेल देम। अगर वो गैमा से प्रेजेंटेशन बनाते भी हैं तो वो प्रेजेंटेशन उन्हें समझ में आना चाहिए, एंड देन दे शुड बी एबल टू use that presentation when they are explaining in the class. When I talk about academic writing और एक speech उन्होंने मान लीजिए जेमिनाई से लिखाया है या जेनी से लिखा लिया है, और for that matter चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं in writing their assignments, ensure and tell them that how to use that AI for the better use, right? कहाँ पे कैसा कैसा वो यूज कर सकते हैं। Then talk to them about professional personal growth, that is leadership, communication, problem solving, critical thinking। ये skills आजकल के डेट में sellable skills है, यही skills हर एक employer चाहता है अपने potential candidates में देखना। तो हमें इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हमारे मेंटीज से करवा लेने हैं। देन इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, जॉब सर्च स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे, धीरे धीरे इंटरव्यूज के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये करवाइए। देन
co-curricular activities, so participation in various intercollegiate and intracollegiate competitions also should be done. मैंने आपको, if you remember, I talked to you about, understanding their areas of interest, their hobbies, their passions. तो आपको पता चल जाएगा who would be able to participate in dance, who would be able to participate in, say, rangoli making or debates or photography or fashion show, could be sports as well, right? So encouraging them to participate will help you. ये अब नैक में कैसे काम में आएगा? हर एक मेंटर के पास अपने अपने मेंटीज का ये पूरा कच्चा चिट्ठा रहेगा. सो क्राइटेरिया 5 में जब हम स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का डेटा मांगते हैं बच्चों का, ये हर एक मेंटर के पास अगर अपने अपने 30 मेंटीज का रहेगा तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू डेटा कलेक्शन फॉर एसएसआर प्रिपरेशन. देन जैसे ही हम थर्ड ईयर में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन गाइडेंस आ जाता है, राइट? प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट. हो सकता है कोई बच्चा नहीं चाहता है जॉब करना, बट उसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, वो बिजनेस करना चाहता है, तो आपके ईडी सेल से आप उसको कनेक्ट कीजिएगा. बिजनेस प्लान डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, पिचिंग स्किल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं तो शार्क टैंक के कुछ एपिसोड्स ही आप आपके बच्चों के साथ देख सकते हैं during the mentoring sessions. It will help them to understand how to pitch an idea, whether the idea is sellable or not, and what is it that the investors look for when they want to invest in a particular business. Then आप उनको पीयर मेंटरिंग में, मतलब जूनियर्स के लिए मेंटरिंग के लिए तैयार कीजिएगा, सो दैट उनके अंदर लीडरशिप एक्टिविटीज आएंगे. थर्ड ईयर का बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को आराम से पीयर मेंटरिंग कर सकता है. ओके, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप स्किल्स आएंगे, टीम स्किल्स आएंगे. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर. फोर्थ ईयर जाते जाते their focus, our focus should be on post graduate और क्या है, जैसे मैंने कहा एंट्रेंस एग्जाम, एप्लीकेशन प्रोसेस, पर्सनल ब्रांडिंग है उनका, ये सब चीजें आपको उनके साथ करवानी है. So these are a few activities that I suggest that you start doing in your institute year wise, semester wise for your students. These are a few sample objectives of the mentoring cell. I'm sure your educational institutes will also be having it, but I thought that I will give you a glimpse of what mentorship will mean too, right? So as I talked to you about what are the benefits of mentoring, is that it definitely gives you a constructive feedback, चाहे वो certifications हो, internships हो, extracurricular activities हैं, इन सबका जो डेटा रहेगा एक मेंटर के पास रहेगा अपने 30 मेंटीज का, जो कि आपको एक्रेडिटेशन में हेल्प करेगा. नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट काउंसलिंग. फ्रेंड्स, आवर जॉब इज टू टीच द स्टूडेंट्स वी हैव, not the ones we would like to have, not the ones we used to have, those we have right now, all of them. We always think that 10 साल पहला बच्चा कैसा था या 5 साल पहले बच्चा कैसा था. We never focus on what we have right now, but that is the reality. So irrespective of whether the student is a slow learner, irrespective of whether the student can speak English or not, whether the student is capable of pursuing higher education or not, we have to help that child in becoming the best he can. And therefore comes the next question, but shouldn't we leave counseling to counselors? The answer to this is yes. We can definitely leave counseling to counselors, but as counselor teacher, okay, why is it important that we become counselors? is admission process में कौन बैठता है आजकल? टीचर्स बैठते हैं. स्कॉलरशिप सेक्शन में भी असिस्टेंट्स के लिए टीचर्स रहते हैं. प्लेसमेंट्स में भी आजकल टीचर्स हेल्प करते हैं. सो टीचर्स आर एवरीवेयर. सो इफ अ टीचर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट लाइन, तो वहां पे अगर हमको थोड़े बहुत काउंसलिंग स्किल्स आ गए तो बहुत बेटर रहेगा टू हैंडल सिचुएशंस. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वी कैन निप दैट प्रॉब्लम देन एंड देयर. So communication skills, respecting and trust is common for mentoring also.
पर ये डिफरेंट कैसे है, तो अभी मैं बता दूं। नंबर 3 विच इज कॉन्फिडेंशियल। अब मान लीजिए एक मेंटी एक मेंटर के पास जाके बोलता है कि मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ इसके बारे में कीजिए। अब मैं तो मैथमेटिक्स की टीचर नहीं हूँ पर उसकी मेंटर हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उन टीचर से जाके बात कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि XYZ बच्चा मेरा मेंटी है, उसको ना थोड़ा सा इसमें दिक्कत जा रही है, विल यू प्लीज लुक आफ्टर, रेमेडियल क्लास ले सकते हैं क्या, या थोड़ा उसको समझा सकते हैं क्या, उसके मन में जो डर बैठ गया है उसको दूर कर सकते हैं क्या, उसके साथ कोई रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं क्या। तो मैंने क्या किया, बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरी टीचर के साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर दी। लेकिन जब काउंसलर के पास कोई क्लाइंट आता है, मतलब बच्चा आता है with a particular problem, I am not supposed to discuss that problem, वो स्टाफ रूम में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। So if at all a student comes to me in a role of a client, okay, यहाँ पे जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलर है ना, क्लाइंट रिलेशनशिप बन जाता है। तो जब मेरे पास कोई बच्चा मेरा क्लाइंट बन के आता है and he talks to me about any particular thing, it could be a personal thing also that he wants to share with me, I am going to keep that thing to myself and I am going to be non-judgmental about it. He can talk to me about liking somebody, the person can talk to me about dropping out of a program, the person can talk to me about pursuing higher education somewhere else, even though मेरे दिमाग में हो सकता है ये बच्चा क्या ही कर लेगा, कहाँ के सपने देख रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, whatever it could be. The student can come to you with whatever it is, but you have to be non-judgmental, at the same time have to be confidential, right? So what can we do? तो जो भी हमारा असेसमेंट पार्ट होता है, मतलब डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, फोबियाज, ये सब हमको नहीं करना है एज अ काउंसलर, बट गाइडेंस कोच का रोल हम लोग कर सकते हैं। इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एक कहीं ना कहीं पे थिन लाइन ड्रॉ करनी है टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीडीनेस एंड अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि the moment you start counseling students will come to you every now and then, they will become dependable on you, right? वो छोटी छोटी इश्यूज भी आपकी तरफ लेके आएंगे। ऐसी सिचुएशन में you have to draw a line, you have to have certain rules and tell them that when it is okay to talk and when it is not okay to talk, what are unreasonable requests and how you should go about it. So आप अगर चाहें, if you really want to get into a career counseling thing, right, courses from IGNOU, Udemy, Swayam will be helpful to understand student psychology. आप चाहें तो करियर काउंसलिंग का भी कोर्स कर सकते हैं और आपके इंस्टीट्यूट में एक करियर काउंसलिंग सेल या फिर गाइडेंस सेंटर के नाम से इसको चला सकते हैं। मतलब लीगल इशू भी नहीं आएगा कि आप काउंसलर नहीं है, प्रोफेशनल काउंसलर, और फिर भी आप कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप बोलिए हम गाइडेंस सेंटर चला रहे हैं, हम एक करियर काउंसलिंग सेल चला रहे हैं, जहाँ पे whatever information that we give is not to be followed to the T, ऐसा आप एक डिस्क्लेमर पहले ही दे सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं इसमें फुल टाइम उतरना, अगर आपके स्किल्स हैं, आपका पैशन है टुवर्ड्स काउंसलिंग, I'll urge you to take a particular course and become a certified career counselor. तो आप आपके इंस्टीट्यूट में एक अच्छा सा रूम ले लीजिए, कंफर्टेबल सिटिंग, क्वाइट प्लेस, जहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ भड़का, बहुत आवाज ना हो, बट अ प्लेस इज नोन टू एवरीबडी। कंसिस्टेंट टाइमिंग रखिए, जनरली क्लासेस के बाद, ओके। अप्रोचेबल काउंसलर्स, 2-3 सीनियर टीचर्स मिलके ये करियर काउंसलिंग सेंटर चालू कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीजें रखनी है, जैसा कि मैंने कहा, सब ई रिसोर्सेज, हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्स रहते हैं, सिविल सर्विसेज के क्या एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, उनका पूरा स्पाइरल बाइंडिंग कर लीजिए। क्या सिलेबस रहता है, मार्किंग सिस्टम कितनी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप रख सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स यू कैन कीप इन विथ योरसेल्फ। टेम्पलेट्स रखिए स्वॉट एनालिसिस के, अगर आप चाहते हैं तो सेल्फ एस्टीम, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे।
अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। अगर आपके इंस्टीट्यूट में चाहते हैं तो मैं फिर भी आपको और एक आइडिया दे देती हूँ। आप एक एफडीपी का छोटा सा वर्कशॉप अरेंज करवा लीजिए फ्रॉम अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू टॉक टू पीपल अबाउट दीज असेसमेंट्स, और वो ट्रेनिंग देके आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। Ensure that you keep a record in this counseling center. एक अच्छा सा नाम दे दीजिए, रूल सेट कर लीजिए, रिकॉर्ड रखिए, रिमार्क्स दीजिए स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स का हमें इसमें सिग्नेचर भी लेना है। ओके, in the end I'll just talk about a small poem which I have made with the help of AI again. So in realms of doubt where shadows creep, a guiding hand, a soul to keep, mentors wisdom, a gentle art, igniting sparks, a brand new start. Counselors ear, a listening friend, with empathy's embrace to comprehend. Through troubled waters, a steady guide, unveiling strengths where fears reside. A bond forged deep, a trust so pure, nurturing growth forever sure. With every step, a helping hand, it life's journey a steadfast stand. For in their care, dreams take flight and potentials soar with radiant light. Mentorings embrace a sacred space where hearts find healing and souls embrace. Thank you so much, everyone, for your patient listening. And I'll quickly again share with you one more Word file which you can use, and this has already been shared with Preeti ma'am. So if anybody is interested, you can take that as well. I hope you can see that Word document in which कैसे कैसे mentoring activities आप कर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम, सिग्नेचर, रिमार्क्स, राइट, क्या क्या सेल्फ अवेयरनेस के एक्टिविटीज, उसके साथ साथ मेंटरिंग फॉर न्यूली इंडक्टेड टीचर्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, एंड देन फाइनली जो काउंसलिंग सेल अगर शुरू करना है तो इस टाइप का आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट किस प्रॉब्लम के साथ आया था, आपने क्या इशू आइडेंटिफाई किया है, क्या सोल्यूशन दिया है, एंड सिग्नेचर एंड नेक्स्ट शेड्यूल। ऑलराइट, so that's it from my side. I'm sure there are no questions. Will that be okay, ma'am? Yes, madam. It was a nice session as usual, but participants are not responsive, but they are sending message in the chat box regarding your appreciation regarding the session. But session was wonderful, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, madam is And, having another session with us in the next week, so we will meet you soon, madam. Friends, any question Yeah. if you have, please ask, or any feedback from your side. आज लवकर संपलं मॅडम आपलं सेशन. Because there was no they were not responding at all. Yes, between, madam. Thank you, madam. नहीं, आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा है, विशेष करके मेंटर मेंटी को लेकर। लेकिन हो ये रहा था कि बीच बीच में मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो प्रश्न उत्तर और या जवाब देने में थोड़ी देर हो रही थी। लेकिन आज बहुत अच्छा रहा है, मैडम ने जो बात रखी है कुछ नया नैक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू दीपा मैडम। So Thank you, friends, यहाँ पे हम रुकते हैं। I extend my thanks to respected Muktai madam once again from all the participants for engaging such an informative session for us. Thank you so much, madam. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you, Bye. madam. Good night. Bye bye. थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हम रुकते हैं। आज की जो एग्ज़ाम थी वो हम मंडे को लेंगे। कल का आपको छुट्टी का दिन मिल रहा है, थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जो वीडियोस मैंने नहीं डाले हैं वो मैं आज शाम तक सेंड कर देती हूँ। टुमारो यू विल बी हैविंग एन हॉलीडे। मंडे वी विल मीट एट 4 o'clock और मंडे को आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगी 7 बजे के बाद में। ओके जी मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच।